بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اور غور کرنے والوں کو، ساتھ ہی ساتھ یار لوگوں کو السلام علیکم، آداب، خوش آمدید۔ سامن مجھے رانا غضنفر کہتے ہیں، خدا ایسے احساس کا نام ہے، رہے سامنے اور دکھائی نہ دے، وہ آئے ہم سے دلیل مانگے، جو کہہ رہے تھے خدا نہیں۔ سامن بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں خدا کے حوالے سے، مختلف سائنسدانوں کے حوالے سے، کہ یہ جو آج کل ایتھیسٹ اور ایتھیزم کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے، اور ہمارے جو دیسی ملحدین ہیں وہ جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں، ان حوالوں سے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بھئی دروازہ تو نہیں بند کیا جا سکتا نا خدا کے امکان کا، کائنات کے کریٹر کا۔ تو اگر ایتھیسٹ یا ایتھیزم لاجک پہ چلتی ہے یا چلتے ہیں، تو مختلف قسم کے ہر زمانے میں سائنسدانوں نے خدا کے ہونے کا اور خدا کے ہونے کے امکان کا اقرار کیا ہے۔ آج میں مختلف سائنسدانوں کی اوپینینز آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اس لیے کچھ منٹس کی زحمتیں آپ نے میرے ساتھ لازمی گزارنی ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، اگر ہم اوورال جائزہ لیں تو اگر آج 8.5 ارب آبادی ہونے کو ہے، اور جس میں مسلمان بھی تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2.3 ارب کے قریب بن جاتے ہیں، یعنی 53 کنٹریز ہیں مسلم 195 میں سے، تو مسلمان جو اوورال پاپولیشن کی ریشو بنتی ہے وہ تقریباً 24% بنتے ہیں، 24%، یعنی تقریباً 2 ارب۔ اور مسلمان ہم جو ہیں الحمدللہ ایک ازلی اور ابدی خدا کو مانتے ہیں، اور میجورٹی کے نزدیک یہ ایک میٹا فزیکل غیر مادی خدا ہے۔ اگر میں آگے عیسائیوں کی طرف جاؤں تو کرسچینٹی ٹوٹل آبادی کا جو ہے وہ 31% بنتے ہیں کرسچن، یعنی 31%۔ اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کرسچینٹی میں گاڈ دا فادر، جیزس کرسٹ، اور اسی طرح سے ہولی اسپرٹ یعنی روح القدس والا جو ان کا عقیدہ ہے، تثلیث کا عقیدہ پایا جاتا ہے، یعنی 3 خدا ہونے کا جو عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو عیسائی جو ہیں وہ 31% ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم یہودیوں کی طرف چلیں تو یہودیوں کے ہاں بھی یہوے کا کانسیپٹ ملتا ہے، وہ بھی ایک غیر مادی خدا کو مانتے ہیں، اور یہودی اس وقت تقریباً 1.5 کروڑ 1.5 1.5 کروڑ، یعنی یہ کل آبادی کا 0.2% بنتا ہے۔ سامعین آگے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہندوازم، یہ تقریباً 1 ارب 20 کروڑ کے قریب ہونے والے ہیں، اور یہ پوری آبادی کا جو ہے وہ 15% بنتا ہے، 15% ہندو موجود ہیں۔ اور ہندوؤں کے آپ کو پتہ ہے جیسے برہما کا کانسیپٹ ہے، مختلف اوتاروں کا کانسیپٹ ہے، کہ وہ بھگوان کو یا دیوتاؤں کو مختلف روپ میں جو پیش کرتے ہیں، جن کو وہ اوتار بھی کہتے ہیں، تو ہندو ہمیں 31% نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم آگے بڑھیں تو بدھ مت جو ہے وہ بدھزم میں ہمیں ایک غیر ذاتی خدا نظر آتا ہے، ایک غیر ذاتی طاقت نظر آتی ہے، اور وہ ایک ان کا ایک غیر مذہبی قسم کا خدا ہے۔ بہرحال وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، اور بدھسٹ جو ہیں اس وقت تقریباً 50 کروڑ کے قریب ہونے والے ہیں، اور یہ تقریباً کل آبادی کا 6% بنتا ہے، 6% جو ہے وہ بدھسٹ موجود ہیں۔ آگے اگر ہم چلیں تو ہمیں جینزم نظر آتی ہے۔ اچھا، جینزم کا خدا جو ہے نا ایک غیر توحیدی خدا ہے، اور ان کے ہاں بھی ایک روحانیت پائی جاتی ہے۔ ان کے جو بڑے 2 مشہور فرقے ہیں یا گروہ کہہ لیں، جس میں دگمبر اور شویتمبر یعنی پائے جاتے ہیں، اور یہ ایک نیم رہبانیت قسم کا ہمیں مذہب نظر آتا ہے، جو عدم تشدد کے قائل ہیں، جو محبت کی، پیس کی بات کرتے ہیں، اور ان کا جو دگمبر ان کے فرقے کے لوگ ہیں وہ آج بھی کپڑے نہ پہننے کے قائل ہیں۔ اکثر آپ کو انڈین شوز میں اور اکثر اس طرح کے یوگا ایونٹس میں آپ کو نظر بھی آتے ہیں۔ جینزم اس وقت تقریباً
50 लाख के करीब होने वाले हैं और ये कुल आबादी का 0.06% बनता है, 0.06% बनता है। सामीन मेरे साथ रहिएगा ज़रा आगे। अगर हम ज़ुरतश्त को देखें तो ज़ुरतश्त में भी एक अहूरा का खुदा है। ये जबर के कायल नहीं है, इंसान को आज़ाद तसव्वुर करते हैं और ज़ुरतश्त जो है इस टाइम मुश्किल से 2 लाख के करीब होने वाले हैं। आगे हम अगर अपने सब कॉन्टिनेंट में देखें तो यहाँ पे जो सिखिज़्म पाई जाती है, आपको पता है कि गुरु नानक जिन्होंने 15वीं सदी में इसका आगाज किया। सिख जो है इस वक्त हमें तकरीबन 2.5 यानी 2.5 करोड़ नजर आते हैं और ये कुल आबादी का तकरीबन 0.3% बनता है। और आपको पता है कि इनके यहाँ भी बेशकल खुदा है और एक तौहीदी खुदा पाया जाता है। सिखिज्म को भी एक इलाहाती मजहब है वो, यानी खुदा को मानने वाला मजहब तस्वर किया जाता है। फिर आखिर में अगर हम देखें तो हमें पॉलीथिज्म जो है वो नजर आती है। पॉलीथिज्म सादा लफ्जों में कई खुदाओं का तस्वर जो हर दौर में हर माशरों में रहा है, मुख्तलिफ खुदाओं का तस्वर जैसे हमें मिस्री और यूनानी तहजीबों में मिलता है। तो सामने मेरा जो पहला पॉइंट था वो ये था कि हर दौर में खुदाओं का तस्वर मौजूद रहा है। और ये जो लोग एतराज करते हैं कि ये दौलतमंद अशराफिया ने खुदा का कॉन्सेप्ट मुतारफ करवाया है, तो अगर हम हजारों साल पीछे चले जाएं तो वहां तो हमें कोई ऐसा अशराफिया का कॉन्सेप्ट नजर नहीं आता ना, ये तो आम मुआशरों से कॉन्सेप्ट आगे बढ़े हैं। तो पहला पॉइंट मेरा ये था कि हर दौर में हर मुआशरे में फितरी तौर पर खुदा का तस्वर मौजूद रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं सामने दूसरे नंबर पे कुछ साइंसदानों के नाम मैं अपने सामने रखना चाह रहा हूँ, आप जरा थोड़ी सी तवज्जो मेरे साथ रखिएगा। सामीन हमारे जो एथियस्ट और मुल्हिदीन है, ये जैसे मैंने अवैस इकबाल को भी सुना, हारिस सुल्तान को भी सुना, मैं अक्सर जो अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बाहर बैठे हुए लोग हैं उनको भी सुना, या जो मजहबी तो है लेकिन थोड़े आप कह लें प्रैक्टिसिंग मजहबी नहीं है, अगर उनकी बात करें तो वो इन साइंसदानों का ये कॉमन नाम है। मैं आज बताने लगा हूँ आपके सामने, जरा इस बात को जरा दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप आए और जनाब आप बंद कमरे में बैठ के तो लोगों को जो कहानी सुनाएंगे तो वो मानी जाएगी। तो एथिज्म का मुकदमा इतना मजबूत नहीं है, अगर होता तो तमाम साइंसदान एथिस्ट होते। नंबर 1, अगर मैं आइजैक न्यूटन की बात करूं चामीन, तो न्यूटन जो है ना, जिनके आपको पता है कि मोशन के जो 3 लॉज हैं उनके बड़े फेमस हैं, वो कहते हैं कि कवानीन फितरत और ये जो रियाजियाती तरतीब है वो इसी को खुदा समझते थे, खुदा की निशानी समझते थे। और वो कहते थे कि ये खूबसूरत निज़ाम शमसी सिर्फ एक ज़हीन और कादरे हस्ती की मंसूबाबंदी से वजूद में आया है। और आपको पता है कि जो न्यूटन है वो इंग्लैंड से ताल्लुक रखते हैं और ये मजहबी तौर पर ईसाई थे, अगरचे बाद में वो खुद को एडवांस भी करते रहे। नंबर 2, अगर हम आइंस्टाइन की बात करें तो आइंस्टाइन खैर रवायती तौर पर पैदा हुए थे ज्यूस बैकग्राउंड में, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी सोच को डेवलप भी किया। वो एक डीस्ट टाइप के थे ना, डीइस्ट टाइप के आप कह लें कि पर्सनैलिटी थे। वो ये समझते थे कि खुदा ने कायनात को लॉज पे लगा दिए और अब वो मुदाखलत नहीं करता। जिस तरह हमारे यहाँ स्पाइनोजा का कॉन्सेप्ट है या स्पाइनोजा का खुदा है, यानी जो नेचर को खुदा समझते हैं या कायनात का नज़्म ज़ब्त ही वो खुदा करार देते हैं। और ये जो रियाजियाती हम आहंगी है, एक मैथमेटिकली जो एक ऑर्डर नजर आता है, वो कहते हैं कि असल में यही खुदा है। और मोजज़ात या इल्हाम वो कहते थे फितरत के अंदर मौजूद है और खुदा को शख्सी हस्ती नहीं समझते, ये जो सोच समझ के फैसले करता है। बहरहाल वो कहते हैं कि खुदा लामुतनाही हकीकत है जो कवानीन के अंदर मौजूद है। यानी इनके यहाँ जिस तरह का भी खुदा का तस्वर मौजूद है, बहरहाल एक वो सुप्रीम एजेंसी को खुदा मानते हैं। सामने नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं, बड़ी दिलचस्प बातें आ गई हैं, मुझे लगता है आप मेरे साथ हैं। मैक्स प्लांक, बहुत मशहूर नाम,
क्वांटम जो आप कह लें फिजिक्स की थ्योरी है, उसके बानियों में से इनका शुमार होता है। वो कहते थे कि कायनात के पसे पुश्त एक बड़ी कुव्वत मौजूद है, उसको मानते थे, और साइंस और मजहब में कोई फर्क नहीं है, और वो ये समझते थे कि ये दोनों एक दूसरे से मुकम्मल होते हैं। और ये भी आपको पता जर्मन है, और ये एक तरह से जो थोड़े मॉडर्न या आप कह लें ईसाई थे, उनमें इनका शुमार होता है। नंबर 4 पे अगर मैं जाऊं तो हाइजेनबर्ग का नाम आपने लाजमी कहीं ना कहीं जहां भी फिजिक्स की या क्वांटम मैकेनिक्स की बात आती है, इनका नाम लिया जाता है। वो कायनात में एक शौरी मंसूबे के कायल थे, और अब उनकी स्टेटमेंट जरा देखिएगा। अब ऐसे इकबाल साहब आपसे मुखातिब हूँ, हारिस सुल्तान साहब सुनिए और इन पे गौर कीजिए। मेरे देसी मुल्हिदीन भाई किधर हैं आज, जरा उन तक बात ये पहुंचनी चाहिए। वो कहते हैं कि हाइजेनबर्ग कहते हैं कि जर्मन है ये भी, कि जब हम साइंस का पहला घूंट पीते हैं तो हम मुल्हिद हो सकते हैं, लेकिन जब हम गिलास की तह में जाते हैं तो वहां खुदा हमारा मुंतजर नजर आता है। क्या शानदार बात की। सामीन आगे बढ़ते हैं, नंबर आई थिंक 6 बन जाता है। लुइस पास्चर का नाम आपने सुना होगा, फ्रांसीसी हैं, कैथोलिक ईसाई थे। वो ये जो नजरिया हयात है ना, जरसोमों की दरियाफ्त और ये जो वैक्सीनेशन के अंदर एक एडवांसमेंट थी या उसकी दरियाफ्त थी, उसके हवाले से लुइस पास्चर का नाम लिया जाता है। वो कहते हैं कि जितना मैं साइंस का मुतालिया करता हूं, भाई इन शख्सियात से बड़े तो नहीं है ना आप, ठीक है, इन्होंने भी तो दीन और दुनिया पढ़ी है ना। वो कहते हैं कि जितना मैं साइंस का मुतालिया करता हूं, उतना ही मेरा ईमान बढ़ता चला जाता है। नंबर 7 पे सामने आगे हम चलते हैं। बहुत मशहूर नाम, विलियम थॉमसन लॉर्ड केल्विन, ब्रिटिश हैं, बहुत बड़ा नाम थर्मो डायनामिक्स के अंदर उनके असूल वजह करने में। ये कहते थे कि कायनात के पीछे कोई खालिक मौजूद है, और ये भी मजहबी तौर पे ईसाई बैकग्राउंड से हमें नजर आते हैं। सामीन 8वां नाम बड़ा अहम है और आपके लिए, आपने ये नाम सुन रखा है, जॉर्ज लमिट्रे। बेल्जियम का ये कैथोलिक ईसाई पादरी था जिसने बिग बैंग की थ्योरी का नजरिया पेश किया। ये रियाजीदान भी था, माहिर फल्कियात भी था, और बिग बैंग के बानियों में से इनको समझा जाता है। ये जो 1929 में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स और फैलती कायनात का क्रेडिट हबल ने लिया है, बेसिकली जो बीज बोने वाला है वो जॉर्ज लेमेट्रे है, जिसने बिग बैंग का कॉन्सेप्ट दिया था। यानी कैथोलिक ईसाई थे। वो कहते थे कि खैर ये बात ठीक है कि वो बिग बैंग को मजहबी या बाइबल की तफसीर करार देना, वो कहते थे दुरुस्त नहीं है। एक ये नजरिया एक साइंसी मॉडल है, साइंस और मजहब को अलग अलग दायरे में देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये देख लें कि एक मजहबी बैकग्राउंड का आदमी अपने मजहब पर रहते हुए बिग बैंग की थ्योरी पेश कर रहे हैं। सामने आगे चलते हैं, नंबर 9 पे हमें बारूख जो है स्पाइनोजा एक नाम नजर आता है। ये यहूदी जो है ना, एक नय्याद फिलोसफर थे नेदरलैंड से, जिन्होंने बारूख स्पाइनोजा, जिन्होंने स्पाइनोजा का कॉन्सेप्ट पेश किया था। यानी कि खुदा नेचर में मौजूद है, खुदा ने नेचर को लॉज पे लगा के छोड़ दिया है, तो वो नेचर के लॉज को खुदा मानते थे। तो बहरहाल ये लोग भी एक सुप्रीम एजेंसी को खुदा मानते रहे हैं। आगे सामीन बढ़ते हैं, हमें नंबर 10 पे पेनरोज, बहुत मशहूर एक नाम नजर आता है, माहिर तबीयात हैं, फिजिक्स की दुनिया में लोग इनको जानते हैं। और ब्लैक होल के अंदर इनका कहना था कि सिंगुलैरिटी ऐसा नुक्ता है जहां वक्त और मकान के कवानीन टूट जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग के साथ इन्होंने काम किया, और ये कहते थे कि कायनात बार बार बनती रहती हैं। बिग बैंग वो कहते थे बहुत खूबसूरत बात की है। मैं अब यहाँ साइंस के अंदर मुकल्लदीन से मुखातिब हूँ, अगर मेरी बात उन तक पहुंच रही है तो। वो कहते थे कि बिग बैंग जो है वो पिछली कायनातों की एंडिंग का, बर्बादी का नतीजा है, ना कि नई कायनात का आगाज। क्या खूबसूरत बात की है उन्होंने। यानी
पेनरोज कहते हैं कि जो बिग बैंग है, जिसको कायनात का आगाज समझा जा रहा है, ये पिछली कायनात का अंजाम है, एंड है। और वो कहते थे कि जो आगे ही है वो कायनात के कवानीन से जुड़ी हुई है। और 1960s में इनका बड़ा दौरे अरूज रहा है, और ये भी ब्रिटिश थे। सामीन, एक नाम बड़ा खूबसूरत हमें मिलता है, कीथ एल अमूर। ये कैनेडियन एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने ना, इस पे मैं डिटेल में अलग एक इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, आप लोग मुंतजर रहिएगा। ये जो कुरान के अंदर रहम मादर के मराहिल 6-7 बयान किए गए हैं ना कुरान मजीद के अंदर, उसको इन्होंने ऑन किया। फिर इनको मुख्तलिफ कंट्रीज में, सऊदी अरेबिया में और मुख्तलिफ जगहों पे इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इन्होंने कहा कि जो कुरान मजीद में रहम मादर में बच्चे की डेवलपमेंट का प्रोसेस बताया गया, वो जो है कि एक नुतफा बनता है, फिर गोश्त बनता है, फिर वो एक चिपकी सी वो जोंक की तरह बनता है, फिर उसको हड्डी शुरू होती है, और फिर उसके ऊपर हम मांस चढ़ा देते हैं। वो जो सारे प्रोसेस थे, उन्होंने कहा था कि 7वीं सदी में ये बात जानना, वो कहते थे, नामुमकिनात में से है, इतना एक्यूरेट जानना। और वो कहते थे कि इसलिए ये मरहला बयान करना इल्हामी इल्म के बगैर मुमकिन नहीं है। कीथ एल अमूर कैनेडियन एम्ब्रोलॉजिस्ट ये बात कर रहे हैं कि कुरान मजीद में, फुरकान हमीद में, वो जो रहम मादर में बच्चे की पैदाइश वाले मराहल बयान हुए हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। सामीन, पैगाम ये था कि नफरतें मत बांटिए, इख्तलाफ जरूर कीजिए। आवाज ऊंची करने से दलाइल मजबूत नहीं होते। सलामती हर उस शख्स पर जो इस कुर्राए अर्ज पर सांस ले रहा है। सामीन, अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।